Good morning, everyone. In today's video, we will study the topic uses of securities premium reserve under the chapter company's account. Dear students, you all know that in company accounts, a company arranges its capital. A company arranges its capital through various sources. Like a company arranges its capital through shares. A company arranges its capital through debentures. And sometimes it takes loan also from the banks. So today we will understand what is the meaning of securities premium reserve. Dear students, when a company arranges its capital through shares, then companies have two options. Number one, to issue the share at par. At par here means a 10 rupees share is offered at 10 rupees only. Means शेयर की फेस वैल्यू और शेयर का इशू प्राइस सेम रहेगा. वन मोर ऑप्शन अ कंपनी हैज़ इज issuing the share at premium. At premium means the company will issue the share more than the face value. See, if the face value of the share is 10 and the company issues its share at rupees 12, then you can see this 2 rupees, the company gets 2 rupees extra on each share. Now see, if the company issues 1 lakh number of shares and it gets 2 rupees per share premium, then the value of that will become 2 lakh rupees securities premium, share premium. So, dear students, how the company uses this amount, the securities premium, the share premium amount that a company has got, first of all, the company transfers this security premium to a reserve. That reserve is called securities premium reserve. कंपनी को जो पर शेयर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले और नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने देखे 1 लाख थे, एक शेयर पर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो 1 लाख शेयर पर कंपनी को 2 लाख रुपीस मिल गए. और ये कंपनी को नॉर्मली नहीं मिलते. इट इज़ अ कैपिटल रिजर्व दैट अ कंपनी गेट्स वंस अ वाइल. कभी कभी मिलते हैं जब कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स को प्रीमियम पर, तो कंपनी इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. नाउ द क्वेश्चन इज सी इन CBSE the probability of this question is very high, and now because they will ask the questions in MCQ forms, so now we need to understand all the points in depth, because the MCQs they can ask from any point. Earlier they used to ask only the use, write 2 uses or write 3 uses, but now they will ask in the form of MCQ. तो आपको हर यूज़ को बहुत ध्यान से देखना है. So here we start with the use of securities premium reserve. Dear students, a company cannot use this reserve इन एनी वे. मतलब किसी भी तरह, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से यूज़ कर लेगी. द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ दिस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व. एंड द सेक्शन प्रोवाइडेड किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन इज सेक्शन 52 ऑफ एंड सब सेक्शन 2. सो सी, 1 MCQ इज़ रेडी फॉर यू. They can ask under which section the use of securities premium reserve is restricted. So this is the section. Section 52, subsection 2 of Companies Act 2013. It has restricted the use of amount
received as premium on securities for the following purpose. 5 पर्पसेस हैं जहाँ पर आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज 5 पर्पसेस वन बाय वन. नंबर ए, issuing fully paid bonus shares to the members. Sometimes the company gives bonus to its members, and to arrange that money the company can use this security premium reserve. ये जो 2 लाख आपने ट्रांसफ़र किए थे, कंपनी ने ट्रांसफ़र किए थे, कंपनी उस 2 लाख में से अपने मेंबर्स को बोनस शेयर्स इशू कर सकती है. तो ये MCQ की फॉर्म में आ सकता है कि क्या बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से. देन यू कैन से येस, इट कैन बी इशूड. नंबर बी, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो. कि कंपनी बिफोर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? बिफोर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. जब कंपनी रजिस्टर हुई तो उससे पहले जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए उन्हें हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. लाइक आई गिव यू एग्जांपल, द फी गिवन टू द लीगल एडवाइज़र. आप एडवोकेट अपॉइंट कर रहे हैं या कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं जो आपको एडवाइस कर रहा है, उसको जो आप फ़ी दे रहे हैं, दैट फ़ी, the fee which is which you have paid for legal advice, the fee which you have paid for some professional advice, professional fee जिसे हम बोलेंगे. और प्रिंटिंग किस चीज़ की करते हैं? आपने 11th में पढ़ा था, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी द कंपनी हैज़ टू इशू अ प्रोस्पेक्टस आपने प्रिंट कराए. तो इस प्रिंटिंग पर जो पैसा लगा, उसके बाद आप जब रजिस्टर कराते हैं तो आप रजिस्ट्रार को भी कुछ फ़ी पे करते हैं, द फ़ी पे टू द रजिस्ट्रार. सो दीज आर सम पेमेंट यू मेक बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड दीज पेमेंट्स इन ऑल आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो टू the company can use this money, this 2 lakh rupees as security premium in paying off this, in writing off these preliminary expenses. ठीक है जी. तो आपका MCQ में वो पूछेगा कि लीगल एडवाइस के लिए जो आपने फ़ी पे की बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कैन दैट बी रिटन ऑफ फ्रॉम दिस अमाउंट? Yes, this can be written off from securities premium reserve account. So preliminary expenses की पेमेंट की एक्सपेंसेस की जो आपने पेमेंट की है उसको राइट ऑफ आप कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमने पढ़ा बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ होता है. सेकंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को. Now come on to point number C. Writing off the expenses of or the commission paid or discount allowed on any issue of securities or debentures of the company. देखिए, जब भी आप शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो आपकी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है. तो राइटिंग ऑफ उन एक्सपेंसेस को भी आप राइट ऑफ करते हैं. क्या एक्सपेंसेस होते हैं? आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं या कोई फ़ी पे करते हैं किसी कमीशन एजेंट को, आपने ब्रोकर को कमीशन दी, या फिर देखिए आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं. यहाँ डिस्काउंट अलाउ मीन्स जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो समटाइम्स द कंपनी इशूज़ इट्स डिबेंचर लेस देन द फेस वैल्यू. सपोज करिए 100 रुपये का एक डिबेंचर है और कंपनी उसे 98 रुपये में लोगों को ऑफ़र कर रही है, तो यहाँ कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है. दिस इज़ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर. कोई
सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इशू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर आप शेयर्स नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। अ शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट अ डिबेंचर कैन बी। तो यहाँ से आपका एक MCQ बन रहा है कि शेयर्स या डिबेंचर कौन सा डिस्काउंट पर आप इशू कर सकते हैं। शेयर्स कैन नेवर बी, अभी मना कर दिया है, पहले था, बट कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। द डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज कैन बी इशूड। तो यहाँ पर जो कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ठीक है जी। तो आपने जो शेयर्स इशू किए, तब जब आपका कुछ कमीशन लगी या कोई और एक्सपेंसेस हुए, उसको आप राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। एंड इफ़ यू हैव इशूड सम सिक्योरिटीज़ एट डिस्काउंट, 100 रुपये का डिबेंचर 98 में आपने इशू किया, 2 रुपये का कंपनी को लॉस हुआ, तो दिस लॉस कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम दिस मनी, दिस 2 lakhs rupees. So I hope C point is clear to you. Now let's move on to point number D. Providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference share or debentures. देखिए, कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स, कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स। ठीक है। तो इक्विटी शेयर की अगर हम बात ना करें, हम बात यहाँ नहीं कर रहे, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं कि वो कई बार प्रेफरेंस शेयर आपके कन्वर्टेबल होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, उनको आपने रिडीम करना होता है कुछ सालों के बाद, और डिबेंचर भी आपने ऐसे रिडीम करने होते हैं कुछ सालों के बाद। तो कई बार कंपनी क्या ऑफ़र करती है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी ज़्यादा पर, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर 10 रुपये का एक शेयर है, रिडीम करने की कंडीशन 12 रुपये है। आज अगर मैं बात करूँ, टुडे इज़ सपोज़ कर रहे हैं, टुडे इज़ 1 अप्रैल 2021, और 10 साल के बाद 31 मार्च 2031 को 10 साल के बाद जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी तो कंपनी 12 रुपये वापस कर रही है। यहाँ कंपनी को 2 रुपये का लॉस हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। व्हाट डू वी कॉल दिस? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। या डिबेंचर का देख लें, 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 10 साल या 5 साल ले लेते हैं, 5 साल के बाद कंपनी 105 रुपये पे कर रही है। यहाँ पर भी कंपनी को 5 रुपये का लॉस है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। तो देखिए ये टर्म प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी। सो दिस लॉस कैन ऑल्सो बी रिटन ऑफ अगेंस्ट दिस reserve, securities premium reserve. This point is clear. Now last one, in purchasing its own shares, and that purchasing the own shares is called as buyback. Dear students, buyback means repurchasing the shares issued in the market. कभी कभी कंपनी ये डिसीजन ले लेती है कि हमारे जो शेयर्स मार्केट में हैं हम उसको रीपरचेज़ करेंगे। तो रीपरचेज करने के लिए भी कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत है। सो दैट मनी कैन बी अरेंज फ्रॉम दिस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सो इन टुडेज वीडियो वी स्टडीड अबाउट 5 uses of securities premium reserve. Bonus share, to issue the fully paid bonus share. राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी उससे पहले के एक्सपेंसेस। देन इफ़ अ कंपनी इशूज़ इट्स सिक्योरिटीज़ एट डिस्काउंट, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, नेवर। अदर सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर्स और सम अदर सिक्योरिटीज़ कैन बी इशूड। तो कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट पर इशू कर रही है, 100 का डिबेंचर 98 पर देगी तो 2 रुपये का लॉस है। ये लॉस भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया जा सकता है।
एंड डी इज़ जब कंपनी रिडीम कर रही है अपने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर को ज़्यादा अमाउंट पर, प्रीमियम पर, 10 का प्रेफरेंस शेयर 12 में वापस करेगी, 100 का डिबेंचर 105 में वापस करेगी। तो ये जो लॉस है ये भी कंपनी कहाँ से ले सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकती है। इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से वापस रीपरचेज कर रही है, देयर ऑल्सो दिस मनी कैन बी यूज्ड। So this is very important from the point of view of your term 1. टर्म 1 में आपका ये टॉपिक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।